نہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے، نہ جو جل شکتی ڈپارٹمنٹ نہ وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے میں پرسوں گیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں ایل جی صاحب کے سامنے بتاؤں گا، لیکن انہوں نے پیچھے بولا نہیں، آج ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور ایل جی صاحب کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا، بالکل دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جب ایڈمنسٹریشن کسی کے ساتھ مذاق کریں تو کیا جھیلنا پڑ رہا ہے عام لوگوں کو. پورا ڈپارٹمنٹ مل کے بالکل ڈفنگ ہے. پچھلے 2-3 مہینے سے پتہ نہیں چلتا ہے افسر ہے کوئی یا نہیں ہے. ایل جی صاحب کے دور میں ہمیں پانی، ہمیں 70 سال سے ہمیں خوشی ہو گئی تھی کہ ہمارا مقصد پورا ہونے والا، لیکن یہ بدقسمتی ایل جی صاحب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ہم ایل جی صاحب کے شکر گزار ہیں. اصل میں ہوا کیا ہے، کیمرہ میں دکھائیں اس کو. جی وہاں پہ یہ دکھاتے ہیں کہ 98% کام یہاں پہ مکمل ہوا ہے. ہاں، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہاں پہ کام ہے. نہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے ایسا. میں کیمرہ بھی دیکھ سکتا ہے، میرا کیمرہ آلریڈی لگا ہوا ہے. تو اب یہ سمجھری کی یہ بات ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی 2 مہینے رہ گئے، پتہ نہیں کل سے اگر بارش ہوگی، برف ہوگی، یہ کام نہیں ہو جائے گا. اب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا. ہماری گزارش یہ ہے کہ جو پیسہ یہاں خرچ ہوا یہ ان آفیسروں کے تنخواہوں سے واپس نکالا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں شرافت منظور. آپ کو بتا دیں کہ جب ایڈمنسٹریشن کسی کے ساتھ مذاق کریں تو کیا جھیلنا پڑ رہا ہے عام لوگوں کو. آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں کہ ادھر سننے میں آ رہا ہے، آج ہم پی ایچ ای اسکیم لدرون پہ موجود ہے، اور ادھر سننے میں آ رہا ہے کہ ایل جی انتظامیہ کو بھی دھوکہ دیا گیا. انہیں بھی صحیح طریقے سے جانکاری نہیں مل رہی ہے. جو کچھ یہاں کے آفیشلز جو انہیں جانکاری دے رہے ہیں. اس سکیم کے بارے میں بات کروں تو قریباً 4 کروڑ سے زائد رقومات کی سکیم ہے، اور یہ سکیم آنے والے منتھس میں شاید کہیں نہ کہیں کلوز ہو جائے گی، ایز پر سورسز جو ہمیں پتہ چلا ہے. ادھر بتایا جاتا ہے کہ نبارڈ کے تحت آنے والی سکیم میں 4 کروڑ سے زائد رقومات ہے، لیکن اس میں کچھ پیسے بھی نکالے گئے ہیں. کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. عوامی حلقوں میں جہاں تشویش کا منظر ہے، وہی رنج و غم اور غصہ بھی نظر آ رہا ہے. عوامی حلقوں میں یہ تشویش ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے آخر کام کیسے کیا، یہ سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے. یہاں ایگزم پی ایچ ای کے خلاف بھی احتجاج، اور اس کے ساتھ ساتھ ایس سی جو ہے اس کے خلاف بھی احتجاج کے مظاہرے، ایون ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرے. کہنے پہ مجبور ہے لوگ، سکیم آئی تھی، گورنمنٹ نے پیسے سیکشن کیے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ڈپارٹمنٹ نے ٹال مٹول کر کے اتنے سال گزارے. حالانکہ یہ سکیم 2022 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور 2023 میں ابھی 2 مہینے باقی ہے. اس سکیم کا نام ہی نہیں آ رہا ہے. ادھر بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایس آر تو بنائی گئی تھی، جو ہم ویژولز میں آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ٹینکی انہوں نے یہاں پہ بنائی تھی، اور اس سے ہی جو پانی ہے اس سے نیچے جائے گا لفٹ سٹیشن میں. عوامی حلقوں میں تشویش ہے. جاننے کے لیے آج ہم پہنچے لدرون میں. میں آج جاننے کی کوشش کروں گا 2 مہینے کے بعد لیپس ہو جائیں گے تو ان کی سکیم کیسے بنے گی، اور 2 کروڑ سے زائد رقومات اس میں نکالے گئے ہیں جو سورس سے سٹیٹمنٹ ملا ہے. حالانکہ میں نے آفیشلی سٹیٹمنٹ جاننے کی کوشش کی، لیکن ایس سی نے بتایا کہ آپ میرے آفس پہ آج. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میرا فیلڈ سٹاف ہے. نہیں ہوں، لیکن ایس سی کی ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے لوگوں سے جاننے کی کوشش کروں گا. سرپنچ صاحب آپ بتائیے کیا ہے پورا معاملہ. اعوذ باللہ من الشیطان. آپ کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر تشریف لائیں، کیونکہ یہاں پہ ہم ہر جگہ، ہم ڈی سی آفس بھی گئے، پی ایچ اے کوپوارہ کے پاس بھی گئے. تقریباً ہمارے 8-9 مہینے سے ہم چل رہے ہیں ان کے پیچھے. ہمیں تو لوگ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں. جب ہم نے پرسوں ہماری وفد گئی تو اس میں شکیل صاحب بھی تھے، ارشد صاحب بھی تھے، ہم اور یہ ڈپٹی صاحب ہمارے ریاض صاحب بھی تھے. ہم وہاں گئے تو جو ہی ہم ڈی سی آفس پہنچے تو وہاں انہوں نے فائل منگائی. افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہاں جب ایڈیشنل ڈی سی صاحب نے فائل منگائی، بولا الاٹمنٹ اس کی لاؤ. جو وہاں اس کا ملازم تھا، جو وہاں کلرک تھا، اس نے اس کو بلایا کہ آپ الاٹمنٹ لاؤ. تو وہ ڈھونڈ رہا تھا ٹھیکیدار کے پاس الاٹمنٹ. اچھا، 4.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اور ڈپارٹمنٹ کے پاس فائل موجود نہیں ہے. اچھا، یہ وہاں پہ میں نے ایڈیشنل ڈی سی صاحب کو بولا کہ یہ جب 5 کروڑ کا ہمارے پاس جب نریگا ہوتا ہے، یہ 50,000 ہمارے پاس فائل ہوتی ہے. تو وہاں جب ڈپارٹمنٹ کے 5 کروڑ کا پروجیکٹ، اور ابھی آج تک اس نے جو ڈیلے کیا ہے، ایس سی جو کوپوارہ ہے پچھلے 2 سال سے، اس کو یہ پتا ہے. اس کو آپ پوچھیے کہ آپ کا پروجیکٹ کہاں پر ہے. اور جو پرانا ایگزن تھا
वो और ये 2 मिल के इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आज तक ये लैप्स करने, जब लैप्स आज होने वाला है। दूसरी बात यह है, जब हमने यहाँ पे अफसोस का मकाम यह है, लदरवन में घास चराई निकाली, घास चराई हमने निकाली, हम खुद चले साथ पंचायत हमने घास चराई इसलिए है कि यहाँ स्टेट लैंड हमें यहाँ गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट बनाना है। अब अफसोस का ये मकाम है कि हर जगह जल शक्ति का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे स्टेट लैंड को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ घास चराई को यहाँ अगर ये तो पब्लिक बेनिफिट है, ये तो किसी या सरपंच या गांव के किसी जियाजत के लिए कोई घर का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है जी। यहाँ पे हम जब काम लगाया, यहाँ पटवाया, हमने निशान दिया, ये खसरा नंबर है 60 घास चराई, हमने यहाँ पे काम लगाया। तो दूसरे दिन तहसीलदार साहब आया, उसने सामान उठाया, बंद किया गया। हम गए तहसीलदार साहब के, बोला परमिशन लाओ। में और भी प्रोजेक्ट होगा पीएचई का चल रहा है, जो जरहमा वया कावारी, अच्छा, जल जीवन में, हाँ, उसकी भी टैंकी बन रही है वो स्टेट लैंड में, हाँ, और हमें परमिशन मांग रहे हैं। लैंड भी हमारी वहाँ पे है, वो दूसरे गांवों को पानी जाएगा, हमें उससे एतराज, उसमें परमिशन नहीं मांग रहे, उसमें परमिशन नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको हमें परमिशन लेने की जरूरत है। अच्छा, एक्चुअली एसीआर साहब के पास हम गए, उसने भी टाल मटोला किया, चिट्ठी हमारे पास है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने लिखा है कि ग्रीवेंस सेल में हमने जब डाला 2 महीने पहले, इन्होंने लिखा है कि 90% काम हुआ है, 89 हुआ है क्या? हुआ, वही मैं देख रहा हूँ हुआ क्या है, हुआ क्या है। अब जब हम डीसी मैम के पास हम गए, तो 2-3 महीने से कुछ नहीं हो रहा। इसके हम तो यहाँ रहने की, ये जो गांव है ना, हमें लगता है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में नाम पे नहीं है, नक्शे पे नहीं है वो। अच्छा, ऑलरेडी ये J&K में अनकवर्ड एरिया है। लेकिन आप मैंने तो सुना है ये मॉडर्न विलेज, सैगी विलेज भाई, ये सैगी विलेज, पानी नहीं है, सैगी विलेज है। अब हमने ये एक्चुअली LG साहब ने परसों कहा कुपवारा में, वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये स्कीम हम जो भी जल शक्ति स्कीम है, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, एंडिंग दिसंबर 2024 को हम ये लैप्स हो जाएंगे, सब क्लोज हो जाएंगे। लेकिन उनको ये धोखा दे रहे हैं LG साहब को। अच्छा। हम खुश हुए थे कि LG साहब के दौर में हमें पानी, हमें 70 साल से हमें खुशी हो गई थी कि हमारा मकसद पूरा होने वाला, लेकिन ये बदकिस्मती LG साहब को भी धोखा दे रहे हैं। हम LG साहब के शुक्रगुजार हैं। असल में हुआ क्या है, असल हकीकत क्या है? असली हकीकत यह है कि ये हमें भी समझ में नहीं रहा, इनको पैसा खाना है। जहाँ तक निकाला फॉल्ट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, यह खाली फॉल्ट कंसर्न डिपार्टमेंट। अच्छा, तमुक मतलब तमो वक्त मे त्रो LG सबस ग्रीवेंस सेल 8 मे त्रोम ग्रीवेंस कि अस आब स्कीम यह बंद, अत काम लागान कह, तो पे लज कम एक्जन प्रोन एक्जन वो लत लाल कर, पे त्रो मे 2 फिर त्रो मे ग्रीवेंस सेल, तमो लुक तौर जवाब कि ये 95% कम गम, 95% कम गम, क्या मे तो मौजूद इथे कन। अलबत्ता ओतर गई तहसीलदार साहबस निश, डिप्टी बह डिप्टी सरपंच, यह सरपंच साहब गए तहसीलदार साहबस निश कि अगर घास चराई मज खना, तम दोप अत ना नबार्डस मज कंपनसेशन, कानूनी कंपनसेशन DPR में ऑलरेडी सबमिट है, कंपनसेशन के लिए 8 लाख रुपए। अच्छा, 9 महीने से लेटर लिखी है एक्जन कुपवारा ने ACR साहब को कि हमें रेट दे दो। अच्छा, रेट का है, वहाँ लैंड की क्या रेट है, हमें इंडियन भेज दो, हम आपको पैसा भेज देंगे। किसको लिखा था? डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को। अच्छा, किसने लिखा था? ये एक्जन कुपवारा ने लिखा। एक्जन कुपवारा, हाँ, वो फाइल वहाँ मौजूद है। अच्छा, आप वहाँ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पे मौजूद है वो फाइल। अच्छा, फिर क्या हुआ ACR साहब के ऑफिस में? आज कल परसों 9 महीने से नहीं मिला वो। अच्छा, फिर जब मैं दूसरी बार गया तो उन्होंने बोला यहाँ इसका पैसा मिलने वाला नहीं है। फिर हमने दूसरी लेटर लाई, एक्जन जो नया एक्जन साहब आया था, ये बेचारा काम करने वाला है, हमें इसके साथ कोई लेना देना न उसके साथ लेना देना, दूसरे पुराने के साथ, लेकिन ये काम करने वाला। इसने लेटर लिखी कि हमें वहाँ स्टेट लैंड अवेलेबल, घास चराई अवेलेबल है, तो दे दो हमें इंडियन दे दो। तो बदकिस्मती से उसको भी आज हो गए 20 दिन। अच्छा, वो भी नहीं हुआ।
अच्छा, और कल तहसीलदार साहब आए, इसने काम लेकिन मैंने सुना है कि एक्जन के खिलाफ भी जो है एक्सप्लेनेशन उसको निकाली गई है चीफ सेक्रेटरी द्वारा। ये जो नया है, क्योंकि इसके जब बेचारा जो कोई काम करता है तो जो अच्छा काम उसी के खिलाफ निकलेगी ना। जो पहले थे, जो ऑलरेडी एससी साहब है, एक्सप्रेशन निकलने चाहिए एससी साहब के खिलाफ, अच्छा, और पुराने एक्जन साहब के खिलाफ। हाँ, क्योंकि जो 2 साल से वहाँ थे, ये बेचारा। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा था, अभी मैं कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा इधर दिखाएं, वो राइट साइड में दिखाएं, आपको अपना कैमरा राइट साइड में दिखाएं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्वार्टर का जो बेड बना हुआ है, ये चीजें शायद मेरे ख्याल से जो सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट लैंड है, किसी शख्स की लैंड है। तो उसमें इन्होंने कैसे निशान डाला, कैसे इन्होंने ये बनाया, फिर उसके बाद अब जो है आप पहुंचे हैं ये फिर से स्टेट लैंड पे, ऐसा क्या हो गया, क्या मामला है? जो ये जिसकी लैंड है, इधर आए आप, जिसकी ये लैंड है, उसने कंपल्सेशन मांगा। जब वो कैमरे की तरफ देखिए, उसने खुद फाइल बनाई, डिपार्टमेंट छोड़ी। पहले जो एक फाइल उसने बनाई तो वो उन्होंने गवाई। अच्छा, 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद फिर 6 महीने के बाद वो फिर उसने फाइल दूसरी तैयार कर दी और डिपार्टमेंट के पास चला गया। जब डीसीआई में फाइल पहुंची तो उसको बोला उन्होंने आपका कंपनसेशन नहीं। निशान किसने डाला था? निशान डिपार्टमेंट वालों ने डाला, खुद डाला। ऑर्डर नहीं पड़ा था 2000? नहीं, ऑलरेडी ये एग्जैक्टली शराफत साहब, ये आप देखिए, हम जी गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आप वहाँ पे जो आपकी जो वहाँ पे ग्रीवेंस सेल है जी, तो वहाँ दिखाएं, कैमरा में दिखाएं इसको जी, वहाँ पे ये दिखाते हैं कि 90% 98% काम यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। हाँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे काम है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं, आप खुद कैमरा भी देख सकता है, मेरा कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब ये समझरी की ये बात है कि डिपार्टमेंट को खुद भी पता नहीं है कि हमें क्या करना है जी। जब डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि कोई सर्कुलर निकला है 2022 में, अगर आपको किसी स्टाफ मेंबर को लेटर लिखनी होती है, एग्जाम से फॉरवर्ड करेगा वही लेटर तब जाकर होगा। एग्जैक्टली, जो सुना है मैंने। हाँ जी, एग्जैक्टली। और उसमें क्या हुआ है सर कि अगर उसको आना था यहाँ पे, उसको कम से कम यहाँ पे देखना था जो भी यहाँ पे मतलब जो यहाँ के तहसीलदार साहब जी, उनके साथ बात करनी थी। ना तहसीलदार के साथ बात हुई है, ना हमारे पटवारी साहब के साथ बात हुई है। वो सीधे आए हैं। तो यहाँ पे जो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे खुद ही यहाँ पे उन्होंने सर यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई है। जब ये मसला हुआ कि कंपनसेशन का मसला, जब हम गए, हमने कहा भाई इसको कंपनसेशन तो दे दो, हम तो सफर कर रहे हैं, गाँव वाले आए हुए हैं, दे दो इसको। हाँ जी, हम कर रहे हैं सफर, तो यहाँ पे सारे गांव वाले सफर कर रहे हैं। पहला गांव ये है कि जहाँ पे अनकवर्ड एरिया है ये। आप ये माने पूरा मतलब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही गांव है लदरवन जो अनकवर्ड है अभी तक। तो फिर क्या हुआ सर, तो हमने कहा कि इन्हें कम से कम ये दीजिए, आप कंपनसेशन दीजिए। तो वहाँ पे जब हमने देखा फाइल में एक सर्कुलर है, वो निकला है 2022 को। हाँ एग्जैक्टली, शायद 2022 में निकला, 22 को निकला। हाँ 22 में निकला है। वहाँ पे सर उसमें ये दिखा मतलब आपके पास सर स्टेट लैंड नहीं है, तो वहाँ पे आप प्राइवेट लैंड ऑक्यूपाई कर सकते हैं जी। मगर यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास स्टेट लैंड है, तो कौन यहाँ पे दे सकता है कि कौन ऐसा ऑफिशियल होगा जो यहाँ पे लिख के देगा कि यहाँ पे सर प्राइवेट मतलब स्टेट लैंड नहीं है। स्टेट लैंड तो है यहाँ पे। जब काम भी शुरू किया था हमने यहाँ पे, और हल भी निकाला था। इसका हल निकाला, तो तहसीलदार साहब आए निकाला। अब पुराने बातों पे हम नहीं जाएंगे, हमने खुद ही गाँव वालों ने इसका हल निकाला। अच्छा, कि हम डीसी ऑफिस गए, उन्होंने वहाँ से कि अब ये प्रॉब्लम तो हल नहीं होगी, अब जो वहाँ साथ में जो जमीन है आप वहीं पे काम लगा। तो हम आए, हमने पटवारी साहब साथ में थे। पटवारी ने ही निशान डाला? बिल्कुल। तो तहसीलदार साहब कैसे आ सकते? पटवारी साहब ने उस वक्त भी फोन किया, तहसीलदार साहब को कि हम फर्दर वो फॉर्मेलिटी है वो बाद में करेंगे, आप काम लगाओ। उसने बताया, लेकिन इसने चिट्ठी निकाली है, वो एसीआर के पास पड़ी। आपने चिट्ठी निकाली थी? मैंने चिट्ठी निकाली। अच्छा, वो 27 तारीख को निकली पिछली। अच्छा, किसी एसीआर ऑफिस से? एसीआर मैंने PHE से लाई, खुद मैंने लाई। अच्छा, तो डिपार्टमेंट ने नहीं किया काम? नहीं, मैंने खुद लाई। अच्छा, ओके। और मैंने डीसी मैडम से मैंने मार्क करवाई ACR साहब के पास। ACR साहब ने आप पता नहीं वो चिट्ठी कहाँ है, उसका पता। जब मैं 3 दिन लगातार चल गए, 4 दिन मैंने बोला ACR साहब को ये चिट्ठी सर फॉरवर्ड कर दो आगे तहसीलदार साहब को। तो बोला आज कल कर देंगे, परसों करेंगे। नहीं हो गया अभी। तहसीलदार साहब आए, काम रोक दिया। फिर तहसीलदार हम लेंगे वहाँ, क्योंकि तहसीलदार साहब आए, पटवारी साहब ने
एक्चुअली जो पटवारी साहब है वो अच्छे इंसान है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ नायब साहब भी अच्छे हैं। तो हम तहसीलदार साहब के यहाँ किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हमें मुखालफत करनी है जो हायर डिपार्टमेंट जो हायर नहीं किया, जिन्होंने काम नहीं किया है। यहाँ पे SC साहब है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड ACR साहब को देना होता है, राइट। जब तहसीलदार साहब को वो मांगे वो दे देगा। जब वो नायब साहब को मांगे वो जब पटवारी साहब को वही हायर अथॉरिटी तो ACR साहब है। जी जी। एग्जन जो SC साहब है, SC साहब को ACR साहब से इनके साथ बात करनी है। और ये खासकर SC साहब टच से मस नहीं हो रहा है। SC साहब बिल्कुल SC को पा रहा है। चिट्ठी इनको फॉरवर्ड करनी है। अब हम खुद कर रहे हैं। हम खुद गा रहे हैं, हम खुद गए वहाँ, क्योंकि न डिपार्टमेंट मौजूद है, न जो जल शक्ति डिपार्टमेंट न वो मौजूद है। तो इसका मतलब है मैं परसों गया था, मैंने सोचा था कि मैं LG साहब के सामने बताऊंगा, लेकिन उन्होंने पीछे बोला नहीं, आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और LG साहब को ये धोखा दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट मिलकर पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल डिफेंग है। पिछले 2-3 महीने से पता नहीं चलता है अफसर है कोई या नहीं है। जनाब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पूरा गवर्नमेंट LG गवर्नमेंट को ये धोखा दे रहे हैं। अच्छा, चाहे उसमें PH है हाँ, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हाँ, जो कुछ भी है, इसके मुनसिल जो भी डिपार्टमेंट आते हैं ये उनको धोखा दे रहे हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट एक्सचेंज को खाली लॉस है ना, 2 करोड़ रुपया निकाला है। सबूत भी है ना कि हमने 95% हमने आपको दिखाया। किस लिए ये किस अथॉरिटी ने यहाँ पे निशान डाला, ये काम लगा है, हमें खुद पता नहीं है। अब शराफत साहब ये बात है कि नटशल में हम आपको अगर ये तो अगर डिपार्टमेंट ये ऑक्यूपाई करो ये करन प्राइवेट, अगर तिमन गस चराई जरूरत ये करन यम गो कि अश तुम तुलान वो टोटल रूद 2 रेत टोटल 2 रेत रूद ये मकले वाइंड अप। अगर तिमन ये ऑक्यूपाई करन अगर तिमन ऑक्यूपाई करें बाद में देखें वो अभी तो इसका भी एतराज नहीं हो रहा है उतना। गवर्नमेंट ऑर्डर का यही वायलेंस कर रहे हैं ना फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जब 2022 में ये ऑर्डर निकला है कि आप कहीं भी जब कोई आपको गवर्नमेंट कोई इदारा आपको तामीर करना है उसमें आप खाली स्टेट लैंड को प्रेफरेंस दे पहले। जी जी। तो जब आपको ये नहीं हो रहा, स्टेट लैंड आपको नहीं मिलेगी तो प्राइवेट लैंड आप कर सकते हो। ठीक है ना। उसमें तहसीलदार साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब को सर्टिफिकेट देनी है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे हैं, उनको पता है हम फंस रहे हैं। आप अच्छा, फंस रहे हैं, वायलेंस वही कर रहे हैं ना गवर्नमेंट ऑर्डर का। अब उनके चक्कर में हम फंस रहे हैं। जी जी। चलिए आप मुझे अब आप लोगों की क्या अपील रहेगी LG इंतजामिया? हमारी अपील ये है कि हमारा ये पैसा अगर 2 महीने के बाद लैप्स हो गया या हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हम पानी के बगैर रह गए, इसमें जो आज तक पैसा लगा जो जाया हुआ ये कंसर्न डिपार्टमेंट के तनख्वाहों से वागुजार होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बड़ा लॉस होता है। क्योंकि अभी 2 महीने रह गए, पता नहीं कल से अगर बारिश होगी, बर्फ होगी, ये काम नहीं हो जाएगा। अब मेरी समझ में ये आता है कि अब ये काम नहीं होगा। हमारी गुजारिश ये है कि जो पैसा यहाँ खर्च हुआ ये इन ऑफिसरों के तनख्वाहों से वापस निकाला जाए। बस अफसोस का ये मुकाम है जी, हम यहाँ पे लदरवन पंचायत वाहिद यही पंचायत थी पूरे ब्लॉक में कि हमने घास चराई निकाली। अच्छा, स्टेट लैंड बिल्कुल हमें नायब साहब होता है, पटवारी साहब साथ हमने जियो टैग कर दिया, लेकिन हमने यहाँ हमने कब्जा करने नहीं दी घास चराई। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको परमिशन नहीं मांग रहे हैं? नहीं, कहाँ है? अच्छा, सिर्फ आपके लिए परमिशन? आप उनको बोलो उसका परमिशन देखा सिर्फ उनके लिए पानी का मसला है, आपको यहाँ परमिशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब शराफत साहब ये हमें आपका लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ। अभी इसको 2 महीने हैं अगर आता है वो हमने तहसीलदार साहब को, अब हमें रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब को भी कि वो चिट्ठी वो खुद ही डिपार्टमेंट एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे ना, हम थोड़ी लेंगे चिट्ठी, तो वो इसमें थोड़ा जल्दी करें, 1-2 दिन में अगर जल्दी करेंगे काम यहाँ लग सकता है, क्योंकि इसका हल निकाला हुआ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उस चिट्ठी के बाद एक्सप्लेनेशन निकलती है एक्जन के नाम पर। हालांकि इन लोगों का मानना है यही एक्जन था जो काम करने वाला है और जो काम कर रहा है ग्राउंड पे, जिसने स्टेप उठाया कि 2 महीने में ही काम खत्म होना चाहिए ताकि लदरवन के लोग पानी के हाहाकार में ना रहें, इनको पानी मिल जाएगा। जबकि नबार्ड में हम 4.5 करोड़ से जायद रुकुमात खर्च कर रहे हैं, तो किस बात पे खर्च कर रहे हैं? अगरचे इसमें 2 करोड़ से जायद रुकुमात निकाले गए हैं, तो किस बात के निकाले? जब लोगों ने पानी नहीं पिया, कोई काम नहीं हुआ, तो किस बात के निकाले गए हैं? अब हम उम्मीद करेंगे। रिपोर्ट नशर होने के बाद कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा।